people who are here, they can also they can also hear my voice, because I can hear your voice and I can translate. The other group is also ready. There are two groups, and I hope that in a few minutes the light will become here and also there. So two groups are with us. 20 more than 20 people are with me, and same like they are with the other group. So when the light will become, they will be able to see you, but they're still able to hear you. I understand. As long as you can hear and they can hear you, the audio doesn't need to come through as good where I am. Yes. Yeah, but it's good to see you, Imran. It's been a long time, and it's strange how quickly time flies. You are right. Well, Now, when we think 2 years, it is a long time, but time has been gone, and we are very thankful that God has given us this opportunity so we can meet again. It me was too. very yes, it was a painful time period for the congregation of Pakistan when they was not able to meet you. They were meeting you every week, but then 2 years there was no chance to meet you. But now they are happy. I am also happy because we are still connected with each other. Yeah. Well, I know that you have the church there, and so may I open us in prayer? Yes, yes, Would that be okay? Can definitely. we can begin now? Yes, Okay, let us go yes, to we the can Lord. begin. Let us go to the Lord together in prayer. और आइए हम खुदा के हजूर झुकेंगे और दुआ करेंगे। Lord, we thank you for the chance to get together. और आसमानी बाप, इस वक्त जब हम एक रफाकत की सूरत में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। I thank you for my friends across the ocean today. और मैं आज समुद्र के उस पार अपने उस दोस्त के लिए, उस भाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। I pray that even though distance separates us, for a little bit we can come together in you. और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि फासलों ने तो हमें दूर रखा है, लेकिन तेरी बदौलत हम इस काबिल हैं कि तेरे इंटरनेट की बदौलत हम एक दूसरे के साथ हैं। I pray that you would help me to speak a message of blessing and life. और मैं इस बात पर उम्मीद रखता हूँ कि तूने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आज एक बरकत और इनके लिए एक रहनुमाई का कलाम देने को हूँ। That it would be a blessing to your people and an honor to you, Lord. और ये तेरे लोगों के लिए एक बरकत है और हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। Lord, I have received from you your truth and I wish to give it away. और आसमानी बाप, मैंने तुझसे तेरी सच्चाई को सीखा और अब मैं चाहता हूं कि ये कलाम तेरे लोगों तक पहुंचे। And it is the best gift I know to give. और मैं जानता हूं कि ये एक बेहतरीन तोहफा है जो तेरे लोगों को दिया जाना चाहिए। And so, Lord, please bless our time together. In Jesus' name, amen. और आसमानी बाप, हम ये दुआ करते हैं कि आज हमारा टाइम मसीह के अंदर एक बाबरकत वक्त हो, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। The last time I spoke with you all, I lived across the United States from where I am now. और जहां मैंने पिछली मर्तबा आपके साथ कलाम सुनाया था, वो समुंदर के उस पार अमेरिका की एक रियासत थी। My family and I have moved and changed so many things in the last 2 years. और अब मैं अपनी उस पुरानी जगह से, मेरा घर तब्दील हो चुका है और पिछले 2 सालों के अंदर बड़ी चीजों की तब्दीली मेरी जिंदगी के अंदर हुई है। Thank you for having me today and allowing me to speak to you. और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आज आपने मुझे बोलने की इजाजत दी और आज आप कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। Thank you very much. और आप सबका शुक्रिया। So, my message to you today is going to be out of the book of Galatians, chapter 1.
और मेरा जो आज का पैगाम है वो गलतियों की किताब में से आपके लिए होगा और ये पहले बाब से शुरू होगा। It is a message that I preached at a church here in Florida a few middle of last year. और मैंने ये कलाम जो है वो पिछले साल जो है वो साल के वस्त के अंदर जो है वो फ्लोरिडा की रियासत के अंदर इस कलाम को सुनाया। It is part of that sermon. और ये उस कलाम का एक हिस्सा है। So I would call the sermon a gospel not according to man. और मैंने इसका नाम ये दिया है कि एक ऐसी अंजील जो इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है। Because the gospel that we believe as Christians did not come from any mere human being, it came from God. क्योंकि जो अंजील हम सुनते हैं और जिस पर हम ईमान रखते हैं वो किसी इंसान से नहीं बल्कि सीधी खुदा से आई है। Friends, you can learn a lot from the world just looking around. और मसीह में मेरे अजीजों आप अपने इर्द गिर्द दुनिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं। You can look at the stars and you can consider your creator or the ocean or the trees. और आप जो है वो अजराम फल्की आप सितारों को देख सकते हैं, आप समुंदर को देख सकते हैं और बहुत सी चीजों को देखकर आप उन्हें अपना खालक मान सकते हैं। You can see love between you, maybe, and your family, and your church, and your friends. और आप अपने खानदान के अंदर, आप अपने चर्च के अंदर और आप अपने रिश्तेदारों के अंदर एक मोहब्बत को देख सकते हैं। But none of us can look to the sky and learn of Jesus. लेकिन हम में से कोई भी जो है वो आसमान की तरफ निगाह करके यीशु को नहीं सीख सकता। That he died on a cross, that he rose again from the dead. और वो सलीब पर मसलूब हुआ, वो मर गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। We need God to tell us these things, or we would not know them. और हमें एक ऐसे खुदा की जरूरत है जो हमें ये चीजें बताए और जो सिखाए। And we should be grateful that he has told us through the prophets in his word these things. और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उसने अपने नबी के जरिया से, अपने कलाम के जरिया से हमें ये चीजें सिखाई। And just like you and me today, the people who received this letter from Paul in Galatia, they needed to be told. और जिस तरीके से हमने आज यहाँ खुदा के कलाम को सीखा है, इसी तरीके से गलीथियों की कलीसिया के अंदर उन्होंने ये खुदा का कलाम वहां हासिल किया था। The people in the first century who received this letter from Paul in Galatia were just like you and me. और जिस तरीके से आप और मैं खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, इसी तरीके से गलीथियों की कलीसिया के अंदर जो लोग थे उन्होंने खुदा के बंदा पौलुस के जरिए से इस कलाम को सुना और कबूल किया। And so God has given us his messengers in the church to teach us what we need to know about him. और इसी तरीके से खुदा ने हमें हमारे खादमीन दिए हैं जो के अंदर हमें खुदा के कलाम के हमें सिखाते हैं। The book we call Galatians was probably the first book written in the New Testament. और किताब जिसको हम गलीथियों कहते हैं, तकरीबन नए नाम के अंदर लिखी जाने वाली पहली किताब है। It was probably written just after or around the middle of the first century. और ये तकरीबन पहली सदी के वक्त के अंदर उसके दरमियाने हिस्से के अंदर लिखी गई। And the whole letter is about teaching you and me about the grace of God in Jesus Christ. और ये जो खत है ये तमाम का तमाम हमें यीशु मसीह के फजल की बाबत सिखाता है। And part of learning these things is learning about the authority of the man who wrote the letter, the apostle we call Paul.
और इन चीजों को सीखना हमें ये बताता है कि बतौर खादम पौलुस की जो पास जो इख्तियार था। Paul had a very unique calling from the Lord. पौलुस के पास खुदा की तरफ से बड़ी मुनफरद एक बुलाहट थी। He was called in a very special and powerful way. और वो खुदा की तरफ से बड़े ताकतवर तरीके से और बड़े रंगीन तरीके से खुदा के हजूर आया। Jesus called him a chosen vessel to bear his name in the world. यस्सु ने उसे अपने नाम को दूसरी कौमों तक ले जाने के लिए एक चुनी हुई जो है वो चुने हुए वैसल का नाम दिया, चुने हुए वसीले का नाम दिया। Paul was a prophet, an apostle of the Lord Jesus Christ. पौलुस एक पैगंबर था और वो खुदा की तरफ से यस्सु का एक रसूल था। Jesus could have chosen anyone. He chose this man and called him in a very special way. यीशु ने किसी को नहीं चुना बल्कि उसने जो है वो पौलुस को बड़े खूबसूरत और अहम तरीके से चुना। Did you know that Jesus is actually the first one called an apostle in the New Testament? क्या आप इस बात को जानते हैं कि यीशु ने इस शख्स को, ये वो पहला शख्स है जिसे बतौर रसूल मुकर्रर किया। The word apostle is a very special title and special of Jesus, but an apostle is someone who is sent. और जो लफ्ज रसूल है ये बड़ा अहम है, और रसूल उस शख्स को कहा जाता है जो खुदा की तरफ से भेजा जाता है। Jesus, who is eternal, left heaven and was sent by the Father and by the Holy Spirit to the world. यीशु हकीकी है और वो बाप की तरफ से भेजा गया और रूह कुदस के वसीला से वो दुनिया के लिए पैगाम का वसीला बना। He came willingly and he was sent with authority. वो खुदा की मर्जी से आया और उसके पास उसको इख्तियार के साथ भेजा गया। And he, being God, chose others and sent them with his authority. और वो बतौर खुदा उसने दूसरों को चुना और उन्हें इख्तियार के साथ भेजा। Paul is not God. Paul is a sent person by God. और पौलुस एक खुदा नहीं है, लेकिन पौलुस खुदा की तरफ से भेजा गया एक रसूल था। And this is very important because we, as we'll see, do not have a gospel that comes from Paul. और ये हमारे लिए बड़ा अहम है क्योंकि जो अंजील मुकद्दस हमारे पास है वो पौलुस रसूल की तरफ से नहीं आई बल्कि खुदा की तरफ से आई है। Paul didn't make this up. He tells us he received it from Jesus, and we need to know that. और पौलुस ने इसे नहीं बनाया है, इसको नहीं लिखा है, बल्कि उसने ये बताया है कि ये उसे खुदा की तरफ से मिली। Anybody can invent a religion. Anybody can tell you what they think the truth is. That's not what Paul is doing. कोई भी एक मजहब को इजाद कर सकता है, कोई भी आपको किसी के बारे में भी सच्चाई के बारे में बता सकता है, लेकिन ये हकीकी नहीं है क्योंकि यही पौलुस रसूल भी बता रहा है कि वो खुदा से कलाम को हासिल करता है। Paul is a messenger of Jesus, sent by Jesus, and saved by Jesus. और पौलुस एक रसूल है जो यीशु की तरफ से भेजा गया और जो यीशु के पैगाम के लिए भेजा गया। And he brought you and me the good news or the gospel of Jesus Christ, his Savior. और उसने यीशु की एक बशारत की खुशखबरी आपको और मुझे दी। And if he could have, he would have got on the internet and preached around the world, just like we're doing and seeing here today. और अगर आप यहाँ आज मेरे कलाम को सुने, आप इंटरनेट पर जा सकते हैं और जिस तरीके से मैं कलाम सुना रहा हूँ, आप लोगों के साथ इस तरीके से कलाम की मुनादी आप भी कर सकते हैं। And so we must receive Paul as we would receive Jesus himself. We must receive Paul's truth.
और जिस तरीके से हमने मसीह को कबूल किया है, इसी तरीके से हमें बतौर रसूल पौलुस रसूल को भी कबूल करने की जरूरत है। Jesus said in John chapter 10, verse 9, that he is the door. यीशु ने यूहन्ना 10 उसकी 9 आयत के अंदर फरमाया है कि मैं जिंदगी का दरवाजा हूं, And that if anyone enters through him, he would be saved. और जो कोई भी यीशु के जरिया से दाखिल होता है वो निजात को जरूर हासिल करेगा। Paul, by the grace of God, entered through that door. In fact, you could say he was dragged through. और पौलुस खुदा की जो फजल के वसीला से क्या, और आप ये कह सकते हैं कि उस खुदा के फजल की बदौलत घसीटा गया। So we're going to read our passage together today. I have it here. If you can see this, I'm not sure, on the screen. और मेरे पास वाकई है, और मैं वो आपके दरमियान उसको पढ़ना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप उसको देख सकते हैं या नहीं। But even if you can't see it, Imran will be able to read it with me here. और अगर आप खुदा के कलाम को नहीं भी देख सकते तो मेरी उम्मीद है कि भाई इमरान आपके दरमियान इस कलाम को पढ़कर सुनाएंगे। Galatians chapter 1, we're going to read verses 11 to 13. और आज हम जो है वो गलीतियों उसका एक बाब उसकी 1 से 13 आयत तक पढ़ेंगे। Verse 11. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. और कलाम मुकद्दस में लिखा है, भाइयों मैं तुम्हें जिताए देता हूं कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं। For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। For ye have heard of my conversion in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. चुनांचा यहूदी तहरीक में जो पहले मेरा चाल चलन था, तुम सुन चुके हो कि मैं खुदा की कलीसिया को अजहद सताता और तबाह करता था। This is Galatians chapter 1, verses 11 to 13. और ये जो है वो गलीतियों एक बाब उसकी 11 से 13 आयत तक है। So, in this whole chapter, we have Paul telling us why we should hear him out. और इस पूरे जो चैप्टर के अंदर पौलुस रसूल हमें ये बता रहा है कि क्यों हमें उसके कलाम को सुनने की जरूरत है। Paul understands Jesus, and he is sent by Jesus to tell you and me. पौलुस यीशु को समझता है और वो यीशु की तरफ से भेजा गया ताकि वो आपको और मुझे उसके पैगाम के बारे में बताए। Now, the issue that's going on in Galatia, where this letter is being written to, let's talk about that for a second. और जो अब पैगाम जो इशू चल रहा है और जो गलीतियों की कलीसिया के अंदर जो मसला था, आज आइए उस पर बात करें। What they got wrong in Galatia was the gospel. और क्या गलीतियों के अंदर जो अंजील थी वो गलत थी? They might have understood who Jesus claimed to be, but they had some issues understanding what he had done. उन्होंने यीशु को जान लिया था, लेकिन उन्हें कुछ मसाइल जो है वो अंजील के मुतल्लक थे, उसकी समझ बूझ के मुतल्लक थे। And in fact, some people in the area, Paul is going to speak very strongly against in this book. और हकीकत में उस एरिया के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिनके बारे में पौलुस रसूल ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। A main message of the book of Galatians, friends, could be summarized in one word: grace.
और गलीतियों की किताब का जो अहम पैगाम है, मैं उससे एक लफ्ज जो है वो पूरा करना चाहता हूँ, और वो फजल है। It is so important to understanding Paul's message that we understand that Jesus did for us something we couldn't do ourselves. और ये पौलुस की तरफ से समझ का बड़ा अहम पैगाम है, जिससे आप और मुझे समझने की जरूरत है। We could not live the life we should have lived. हमें जो है वो जिंदगी को गुजारना है, और हमें इस जिंदगी के अंदर रहना है जो मसीह की तरफ से है। Our lives are marked by sin and by our inability to please God. और हमारी जिंदगियां जो है वो गुनाह आलूदा हैं, और हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम खुदा को खुश कर सके। To understand why we needed someone else to die on that cross and resurrect, we have to understand something about ourselves. और हमें इस चीज को जानने की जरूरत है कि क्यों हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो सलीब पर हमारे लिए मसलूब हो, और फिर हमारे लिए मुर्दों में से जी उठे। उसके लिए हमें पहले अपने आप पर गौर करनी है। And when we understand what we must, it helps us understand grace. और जब हम इसको समझ जाएंगे तो ये जरूर हमारी मदद करेगा, और ये फजल है। Grace. We need to understand God's grace. हमें खुदा के फजल को जानने की जरूरत है। The gospel of Jesus Christ reveals to us the grace of our God. और जो खुदा की अंजील है वो हमें उसके जो खुदा की अंजील है वो हमें उसके फजल के बारे में बताती है। And grace is such a precious thing that we need to protect it. We need to really try to understand it and guard it. और जो फजल है ये बड़ी कीमती चीज है, हमें इसे संभाल कर रखना है, और हमें इसके अंदर जो है वो काबिलियत रखनी है कि हम इसके जरिया से काम कर सकें। Paul was sent to preach a gospel to people who need to hear it. पौलुस को इसलिए भेजा गया ताकि वो खुदावंद की अंजील मुकद्दस लोगों को सुनाए जिनको इनकी जरूरत है। To people who, when they die, need righteousness to escape God's judgment. और लोग जो मसीह के अंदर मर जाते हैं उनको पौलुस रसूल की उस निजात की जरूरत, उस रास्तबाजी की जरूरत है ताकि वो खुदा के अजाब से बच जाएं। Sinners need a savior. और जो गुनाहगार हैं उनको एक निजात दहिंदा की जरूरत है। They don't just need words or things to do or prayers to pray, they need a savior. और उनको अल्फाज की जरूरत नहीं है, उनको दुआओं की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको एक निजात दहिंदा की जरूरत है। Jesus is our savior, and Paul wants to tell us all about his grace. और यीशु हमारा निजात दहिंदा है, और पौलुस रसूल यीशु की उस निजात को सब लोगों को बताना चाहता है। Paul's gospel of grace is a message to you and me that none of us could in any way, shape, or form ever dare to deserve. और पौलुस रसूल की फजल की जो अंजील है वो हमें ये बताती है कि कोई भी अपने आप को इस सूरत के अंदर नहीं ढाल सकता कि वो खुदा की रास्तबाजी को उसके फजल के बगैर हासिल कर सके। We cannot merit or deserve eternal life with God. We can't earn that. और हम जो है वो खुदा की जो रास्तबाजी है उसको कमा नहीं सकते, हम उसके लिए
इस कदर काबिल नहीं है कि हम अपने अमाल से उसको हासिल कर सकें। And no one ever could. And so God has been saving people by his grace from the start. और कोई भी जो है वो इस काबिल नहीं है, लेकिन हम खुदावंद यीशु की फजल की बदौलत लोगों की निजात को महफूज कर रहे हैं। The gospel that I remind or announce to you today is that same gospel in Christ of grace from God. और अंजील जिसको मैं जानता हूं, जिसकी मैं मनादी आज आपको कर रहा हूं, वो यही है कि वो खुदावंद यीशु की फजल की अंजील है। And friends, if anyone believes in Jesus for this grace, it didn't come to them from Paul only. और मसीह में मेरे अजीजों, जितने यीशु की उस निजात पर यकीन रखते हैं, वो सिर्फ पौलुस की तरफ निगाह न करें, बल्कि उसकी अंजील पर गौर करें। Believing in Jesus is directly a gift from God to the believer. और मसीह के अंदर ईमान रखना ये वो तोहफा है जो ईमानदारों को खुदा की तरफ से बराह रास्त हासिल होता है। Apostles preach, but God alone saves, and does that by grace. और पौलुस रसूल ने उसकी मनादी की, लेकिन यीशु ने अकेले फजल की बदौलत लोगों को बचाया। Paul said he didn't get his gospel from anyone, he got it from God. उसने किसी अंजील को नहीं हासिल किया, बल्कि उसने ये बराह रास्त खुदा से इस अंजील को हासिल किया। He got it from a revelation of who Jesus Christ is. उसने खुदा से इस मुकाशफा को हासिल किया कि यीशु क्या है। Paul was taught by God that he needed a savior, and Paul believed in Jesus as that savior. पौलुस रसूल ने खुदा से ये सीखा कि उसे एक निजात दहिंदा की जरूरत है, और उसने मसीह के ऊपर ईमान रखा। And for you and me, it's the exact same. We believe in that same savior that we've heard of through men like Paul. और आपके लिए और मेरे लिए भी ये अहम है, और ये एक जैसा है कि हम यीशु पर जो है वो उसके फजल पर यकीन रखें। Think of grace like something you can only receive from God as a gift. और फजल की मार्फत गौर करें, और ये इस तरीके से है जैसे आप खुदा से कोई तोहफे को हासिल करते हैं। You don't buy a gift, you can only receive a gift. और एक ऐसा तोहफा जिसे आप खरीद नहीं सकते, लेकिन सिर्फ आप उसे हासिल किसी से कर सकते हैं। And this is what the gospel shows us is that life and grace is a gift we don't purchase. और यही अंजील मुकद्दस हमें बताती है कि फजल और जो जिंदगी है ये ऐसी है जो हम किसी से खरीद नहीं सकते। Think of all the world's religions outside of Christianity, and they are all going to tell you that you can earn it. You can earn God's grace. और मसीहियों के अलावा दुनिया के अंदर तमाम मज़ाहिब आपको इस बात की तालीम देंगे कि आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। The gospel says something very different. It's the gospel of the Savior, Jesus Christ, alone. लेकिन अंजील मुकद्दस इसके बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ बताती है, और वो ये है कि आप यीशु और यीशु की बदौलत से ही सिर्फ फजल को हासिल कर सकते हैं। Paul does not preach a gospel that is invented by human beings. और पौलुस रसूल ने एक ऐसी अंजील की तबलीग नहीं की जो किसी इंसान की तरफ से इजाद की गई है। It is an entirely different message than all of the world's religions. और ये पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहिब से बिल्कुल मुख्तलिफ एक पैगाम है। And so in Galatians, we have two paths set before us, one of grace and one of works.
और गलीतियों के अंदर हमारे पास दो रास्ते हैं कि हम या तो फजल की बदौलत या फिर अपने कामों की बदौलत जो है वो इसको हासिल करते हैं। Friends, what Christ has lived and died and resurrected and brought to you and me is something very special. मसीह में मेरे अजीजों, मसीह का मर जाना, उसका मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए एक ऐसी चीज है जो बड़ी अहम है। What he bought does not come to us because of what we do, it comes to us because of what he did. और जो कुछ हमारे पास आता है वो इसलिए नहीं है कि हमने उसे कमाया है, बल्कि ये मसीह की बदौलत हमें हासिल हुआ है। And so we announce a crucified and resurrected Savior who saves by grace alone. और हम एक ऐसे चीज पर ईमान रखते हैं, एक ऐसे निजात दहिंदा पर ईमान रखते हैं जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा, और ये फजल की बदौलत मुमकिन हुआ। God will accept only one thing, friends, as a payment for your sin. Only one thing, and that is the righteousness of Jesus Christ alone. और मसीह में मेरे अजीजों, आपके गुनाहों के लिए खुदा सिर्फ एक चीज को कबूल करता है जो आपके गुनाहों को माफ कर सकती है, और वो यीशु मसीह की रास्तबाजी है। If you are in Christ, God will receive you in Him, and that's the message. और अगर आप मसीह के अंदर हैं तो खुदा आपको कबूल करेगा उसके अंदर, अगर आप मसीह पर ईमान रखते हैं। This righteousness that I'm talking about before God can't come to us any other way. वो रास्तबाजी जो खुदा के लिए अहम है और जिसकी बदौलत हम बख्शे जाएंगे, वो सिर्फ एक ही जरिया से आती है। In the very next chapter in Galatians 2:21, Paul will say the following. और इसी जो बाब के बिल्कुल अगले हिस्से में गलीतियों 2:21 के अंदर पौलुस रसूल इस तरह फरमाता है। He says, if righteousness comes through the law, then Christ died for nothing. और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर रास्तबाजी शरीयत की बदौलत आती है तो मसीह का मरना बिल्कुल बेकार और अबस है। What he's saying is if you could get righteousness anywhere else, there was no need of Jesus' death. फिर इसका मतलब यह है कि निजात अगर किसी भी तरीके से आ सकती है तो फिर यीशु का मरना तो बेकार है, वो क्यों मरा। But we need his death. We need his life because we are the guilty. और हमें उसकी मौत की जरूरत है क्योंकि हमने खुदा के हजूर गुनाह किया और हम खुदा के गुनाहगार हैं। We need to be washed, and Jesus is willing to do it for all those who will trust in him and receive his righteousness. और हम सबको जो है वो अपने आप को धोने की जरूरत है, और जो कोई भी यीशु पर ईमान रखता है, यीशु उनको ऐसा साफ करने के लिए इरादा रखता है। So you'll talk to a lot of people today that have a lot of opinions about Jesus. और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मुख्तलिफ जो है वो राय हैं मसीह के बारे में। Some will say he's just a prophet. Some will say he's just a good person. Others will call him Lord and God and worship him. और आप में से कुछ कहेंगे कि वो सिर्फ एक पैगंबर था, कुछ कहेंगे वो एक सिर्फ अच्छा इंसान था, लेकिन आप में से कुछ ये भी ईमान रखते हैं कि वो जो है वो तसलीस का तीसरा अहम रुकन और खुदा का खुदा था और खुदावंद भी था। Some people in Galatia were sort of saying they believed in Jesus, but Paul is going to say that they really don't. और गलीतियों की कलीसिया के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो यीशु पर ईमान रखते थे, लेकिन पौलुस रसूल इनके बारे में कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो मसीह पर ईमान रखते थे। Paul's going to teach us that they call on a Jesus, but that they don't call on him rightly. They don't understand him. पौलुस रसूल हमें ये बता रहा है कि वो खुदावंत यीशु को खुदा खुदा तो मानते थे, खुदावंत तो मानते थे, लेकिन वो उस तरीके से नहीं मानते थे जिस तरीके से खुदा का कलाम फरमाता है। And so I ask you, what about you?
Do you call on Jesus today in your life rightly? और अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आज आप भी खुदा पर दुरुस्त तरीके से ईमान रखते हैं? If you trust in Jesus, then you don't need to trust in anybody else. और अगर आप यीशु पर ईमान रखते हैं तो आपको किसी और शख्स पर ईमान रखने की जरूरत नहीं है। That Jesus alone is your Savior really matters. That you trust in no one else to save you, not even yourself. और जब यीशु आपका निजात दहिंदा है, अकेला आपका निजात दहिंदा है, तो आपको जिंदगी के तमाम मामलात के अंदर किसी और की नहीं बल्कि यीशु की जरूरत है। And I want to tell you that what Jesus did on the cross is enough to purchase your ransom from sin and death. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कुछ यीशु ने सलीब पर किया वो आपके गुनाहों की माफी और आपके गुनाहों की तलाफी के लिए अहम और काफी था। Think of what Jesus did for you like a debt that you owe someone else. और इस बारे में सोचें कि यीशु का फजल इस तरह है जिस से आपने कोई कर्जा हासिल किया था किसी और शख्स से, लेकिन आपके लिए उस कर्जे को यीशु ने अदा दिया है। If you owe someone $1,000, think of what Jesus did like that $1,000 debt. और यीशु ने जो आपकी निजात के लिए किया है उसे इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपने किसी शख्स से $1,000 यानी कि कोई बहुत से पैसे आपने किसी से हासिल किए हो और आपके ऊपर वो कर्ज हो, लेकिन वो कर्ज आपकी जगह यीशु ने अदा किया है। What Paul wants you to understand is that Jesus did not come to pay $10 toward that debt or $500 toward that debt, half of it or some part of it. और पौलुस हमें ये बताता है कि हमें समझने की जरूरत है कि यीशु ने कोई $10 नहीं, कोई $500 नहीं, या उसका आधा या उससे ज्यादा नहीं दिया, बल्कि ये कुछ और था। Jesus does not offer any of us to pay part of our debt. He does not offer that. और यीशु ने कभी हमसे ये नहीं कहा है कि जो कर्ज, जो लानत हमारे ऊपर थी, उसमें से हम उसका साथ दें और उसे कुछ ना कुछ दें। What he offers is to pay all of the debt or nothing. और जो कुछ उसने हमें जिसकी पेशकश की है वो कुछ और नहीं है, बल्कि ये है कि उसने हमारा सारा कर्ज जो है वो अपनी फजल की बदौलत चुका दिया है। And I think this can help us understand Paul's gospel that he received from Jesus. I think this picture can help. और मैं इस तस्वीर की बदौलत बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि ये आपकी मदद करे कि किस तरीके से यीशु ने हमारा कर्ज अदा कर दिया है। Because if we believe that Jesus paid all of our debt, we don't look anywhere else to pay for it. क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा सारा कर्ज अदा कर दिया है तो फिर हमें किसी और तरफ देखने की जरूरत नहीं है जो हमारा कर्ज उतारे। It would be strange if your debt is paid to look anywhere else to pay it. और ये बड़ी हैरानी की बात है, जब आपका कर्जा उतर जाए तो आप किसी और की तरफ देखें कि वो आपके लिए मदद करे। What Paul wants you to understand is that Jesus' offer to us is that he will cover all of our sin with his righteousness. और जो कुछ पौलुस हमें समझाना चाहता है वो ये है कि यीशु के लहू की बदौलत हमने तमाम हमारा जो गुनाह का कर्जा था And वो please, उतर चुका है। and please let me glorify Jesus by just saying it again. He will pay it all. और आइए मैं फिर से एक मर्तबा खुदा के जलाल को जाहिर करना चाहता हूं कि उसने हमारा तमाम कर्ज जो है वो अपने लहू की बदौलत उतार दिया। हालेलुया। Hallelujah.
To my Father in heaven, would you be honored that we would say, Lord, we want to accept that payment for all of our sin that Jesus made? और हम खुदा ऐ बाप तू जो आसमान पर है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमारे तमाम कर्ज को अपने लहू की बदौलत जो है वो अदा कर दिया है। God, may we never believe in a Jesus who only helps us save ourselves, but can we believe in the Jesus that Paul preached that saves? और ए बाप, हमने जो कभी यीशु पर ईमान नहीं रखा, जो हमारे ईमान में हमारी मदद कर सकता है और जिसने हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया, जिसके बारे में पौलुस रसूल ने हमें बताया, हमें उस ईमान को समझने की तौफीक बख्श। It is a fallen world and we have so many needs. But what Jesus did is so precious that it truly takes care of our greatest need. और ये गिरने वाली और हलाक होने वाली जिंदगी है और इसके अंदर हमारी बहुत सी जरूरियात हैं, लेकिन जो कुछ यीशु ने हमारे लिए किया वो बड़ा अहम और कीमती है। What could be more important than being in fellowship with our Creator? और हमारे लिए जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि हम मसीह के लिए रफाकत के अंदर रहे, मेल जोल के साथ रहें। And you know, it's not just paying all of our debt so that we can get into debt again with God. The gospel is something better. और इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपके सारे कर्ज को अदा कर दिया है और आपको फिर उस कर्ज को अदा करने की जरूरत है। अंजील मुकद्दस इस बारे में बड़ी मुख्तलिफ है। Because if Jesus just sort of paid our debt and left us there, we'd still have more sin. और अगर यीशु हमारे कर्ज का कोई आधा हिस्सा दे देता और बाकी थोड़ा सा रहने देता तो हम फिर भी गुनाह के अंदर ही रहते, लेकिन उसने सारा कर्ज उतार दिया। We need righteousness that will truly continue and wash us continually in God. और हमें जो है वो रास्तबाजी की जरूरत है, जो हमें साफ करती है और जो हमें मुसलसल खुदा के हजूर चलने की तौफीक देती है। So, what we have in Scripture is that we have Christ who is truly our Savior, not just yesterday, but today and tomorrow and the next day and the next day. और जो कुछ हमने अंजील मुकद्दस में से सीखा है वो ये है कि हमें यीशु की अहम तौर पर जरूरत है, और वो एक ऐसे यीशु की जरूरत है जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। The Apostle John says it like this in 1 John 1:7. और पैगंबर यूहन्ना जो है वो इस बारे में, यूहन्ना रसूल इस तरह फरमाता है, पहला यूहन्ना उसका 1 बाब उसकी 6 आयत के अंदर। But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin. लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। Jesus pays it all and washes us from it all. और यीशु ने हमारे लिए सारा कुछ अदा कर दिया, मुकम्मल कीमत अदा कर दी और उसने हमें पाक साफ किया। Friends, this is what Paul was taught by Jesus, and it's what he wants you to know. और अजीजों, ये वो पैगाम है जो यीशु ने पौलुस के जरिए हमें बताया, समझाया। Paul's gospel is not from man, it's from Christ. और पौलुस रसूल की जो अंजील मुकद्दस है वो किसी इंसान से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से हम तक पहुंची। And I don't care if you're the richest person on earth or the poorest person on earth or the healthiest person on earth or the sickest person on earth, your greatest need is righteousness. और मेरे नजदीक कोई दुनिया का अमीर तरीन शख्स, कोई दुनिया का कमजोर तरीन शख्स, और कोई दुनिया का गरीब शख्स, और कोई दुनिया का बीमार शख्स, और कोई दुनिया का सेहतमंद शख्स, कोई भी मेरे लिए ज्यादा कदर के अहम नहीं है, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि सबकी जरूरत यीशु और उसका फजल है।
Paul tells us here how he used to persecute the church, how he used to hate Christianity, but then God saved him. और पौलुस रसूल बताता है कि किस तरह वो मसीहियत से नफरत करता था, किस तरह वो चर्च को सताता था और किस तरह यीशु की रास्ताबाजी और उसके फजल की बदौलत उसकी बख्शिश हुई। What changed Paul is the gospel. और जो अंजील, जो तब्दीली आई, वही पौलुस रसूल की अंजील थी। It turned him from being a man who would kill you to being a man who would die for you. और वो एक ऐसा शख्स से तब्दील हुआ, वो एक ऐसा शख्स था जो पहले किसी को मारता था, लेकिन फिर वो मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो गया। Paul understood that what Jesus did in his life and death, Paul could not do for Paul. और पौलुस रसूल इस बात को जानता है कि जो कुछ मसीह ने उसकी जिंदगी के लिए किया, अगर वो किसी इंसान की तरफ से होता है तो पौलुस रसूल खुद अपने लिए भी वो ना कर पाता। Paul said that God set him up as the chief example of his love and grace toward wicked people. और पौलुस ने ये कहा कि उसने एक जो है वो फजल की बदौलत दुनिया के जो बुरे तरीन शख्स से उसकी तब्दीली हुई। Paul said he was the biggest sinner of us all, and that yet God saved him. पौलुस ने ये बताया कि वो दुनिया के बुरे तरीन गुनाहगारों में से था, लेकिन फिर भी खुदा ने उसे बचाया। Paul worked more for Jesus, maybe, than all of us combined. और पौलुस रसूल ने हम सबसे ज्यादा जो है वो मसीह के लिए काम किया। And we should work, and we should be diligent to honor God and to obey his commandments. We should do that. और हमें भी खुदा के हजूर जो है वो उसकी इज्जत के लिए, उसके जलाल के लिए जो है वो बड़े पुरवकार तरीके से उसके कलाम के लिए जुड़े रहना है। But Paul taught us it would be a sin of us to assume that anything that we do could equal or help what Jesus did for us. और पौलुस रसूल ने ये कहा है कि जो कुछ भी हम अपनी निजात के लिए करते, वो सारी दुनिया का एक तरफ, लेकिन पौलुस ने जो हमारे लिए किया वो एक तरफ था। I mean, if we just had another bull or a goat to offer for our sin, it would be one thing. और मेरे मुताबिक अगर हम अपनी कुर्बान अपने गुनाह के लिए एक बछड़े को या एक गाय को कुर्बान करें, वो एक तरफ है। If God merely asked us to give some money or to say some prayers or to get down on our knees to receive grace, it would be one thing. और अगर खुदा हमसे कहे कि वो हमें थोड़े से पैसे खुदा को देने हैं, या हमें अपने घुटनों के बल होकर खुदा से उसके फजल को हासिल करने के लिए दुआ करनी है। But according to all the prophets, the Christ, in order to redeem, had to suffer. लेकिन जो है वो पैगंबरों के नजदीक और यीशु के नजदीक हमें जो है वो बहाली के लिए मुख्तलिफ तकलीफ को बर्दाश्त करना था। Jesus had to suffer to redeem us. यीशु ने हमारे लिए जो है वो तकलीफों को बर्दाश्त किया। And so imagine looking at that and saying you believe it, but saying that it's not enough. और आज इस बात पर गौर करें, और आज जिस तरीके से ईमान के बारे में बताया गया है उस बारे में भी गौर करें। Saying that well, Jesus only paid part of the debt, and I still have some I have to take care of. What? How would that be? और इस बात पर गौर करें कि अगर आप कहें कि यीशु ने हमारा कुछ कर्ज अदा किया है और हमें अभी भी उस कर्ज को अदा करने की जरूरत है, तो ये कैसा मजाका खेज होगा। If we will hear the Apostle Paul, we will hear him proclaim that God did for us something we could not do. और अगर हम पौलुस रसूल पर गौर करें
we will hear a message of grace. और अगर हम पौलुस रसूल पर गौर करें तो हम खुदा के फजल का पैगाम सुनेंगे। It'll demand everything from you, but it demands that you cease from your works. और वो आपसे तमाम चीजों की तलब करेगा, वो ये चाहेगा कि आप अपने तमाम कामों से बाज आ जाएं। One commentator on the Bible said something very wonderful about Paul. I want to read you a brief quote. और एक बाइबल के एक जो मुबल्लिग है उसने बाइबल के बारे में एक कमेंट्री में ये चीज बयान की है और मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। A man named David Guzik said the following. और एक शख्स जिसका नाम डेविड यूजिक है वो इस तरह बयान करता है। He said, Paul wrote of how Jesus was revealed to him, the revelation of Jesus Christ. और वो बताता है कि कितना पौलुस रसूल ने ये लिखा है कि किस तरीके से यीशु जाहिर हुआ। But here is something different and perhaps more glorious. Jesus revealed in Paul. और यहाँ एक बड़ा मुख्तलिफ और हमारे लिए बड़ा शानदार है कि यीशु जो है वो पौलुस के अंदर जो है उसने अपने आप को जाहिर किया। God wants to do more than reveal Jesus to us. He wants to reveal Jesus in us. और खुदा ये चाहता है कि हम और करें ताकि हम यीशु को जाहिर करें और वो हम जो है वो यीशु को हम में जाहिर करना चाहता है। Paul's testimony is that when Jesus revealed himself to him, he changed him and revealed himself in Paul. और पौलुस की गवाही ये है कि किस तरह यीशु के अंदर जो है वो जाहिर हुआ और किस तरीके से यीशु ने उसकी जिंदगी को तब्दील किया। And that same revelation is what every Christian can understand, that Christ, when he saves them, comes and fellowships with him. और यही मुकाशवे की आपको और पूरी दुनिया को जरूरत है कि किस तरीके से यीशु हमें चुनता और हमें हमारी तब्दीली करवाता है। So when we receive Paul's message, we receive the one who sent Paul. When we receive Paul's और message, we receive the one who sent जब Paul. जब हम जो है वो पौलुस के पैगाम को सुनते हैं, कबूल करते हैं, तो हम यीशु को कबूल करते हैं। And listen to what Paul said in 2 Corinthians 4:6. और आइए पौलुस रसूल पर गौर करें, दूसरा कुरिन्थियों उसको 4 बाब उसकी 6 आयत के अंदर किस तरह खुदा का कलाम फरमाता है। He says, For God who said, Let light shine out of darkness, is the one who has shone in our hearts. और उसने कहा कि खुदा ये फरमाता है कि रोशनी को अंधेरे में से जाहिर हो और वो हमारे दिलों के अंदर जाहिर है। To give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. और मसीह के चेहरे के अंदर उसकी हिकमत को जो रोशनी के जरिया से है वो हमें बख्श दे। So, has the gospel broken in upon your life like it did in Paul's life? क्या वो रोशनी जो पौलुस रसूल की जिंदगी पर जाहिर हुई, क्या वो आज आपकी और मेरी जिंदगी में है? A gospel that merely asks you to do what you can do really doesn't demand much of you. और एक जो अंजील है जो आपसे और मुझसे पूछती है और जो हमें बहुत ज्यादा करने के लिए नहीं उकसाती। A gospel that just says do your best really isn't that big. और एक गास्पल जो हमें कहे कि हम अपना बेहतरीन दें और बहुत ज्यादा ना करें। But the kind of gospel that changes a man like Paul is one that comes through the work of God the Son.
उस तरह की एक अंजील जो एक इंसान को और एक जिस तरह पौलुस को उसने तब्दील किया, वो जो आती है वो अंजील खुदा की तरफ से आती है। Paul doesn't proclaim a Jesus on a cross who's just some prophet. और पौलुस ने ये नहीं मुनादी की कि जिस तरह मसीह सलीब पर मसलूब हुआ वो भी उस जैसा एक पैगंबर है। The gospel that Paul received as a revelation is not of some sinner named Jesus. और पौलुस रसूल ने एक अंजील जो हासिल की, मुकाशफा की, वो एक ऐसे शख्स की अंजील नहीं थी जिसे यीशु गुनाहगार कहते हैं, बल्कि वो एक रास्तबाज यीशु की अंजील थी। The gospel Paul preached is of the death of the second member of the Trinity, God the Son himself. पौलुस ने जो अंजील सुनाई वो किसी शख्स की नहीं थी, बल्कि वो यीशु की उस मसलूबियत के बारे में थी और तसलीस के दूसरे रुकन खुदा खुद के बारे में थी, जो पौलुस ने जिसकी मुनादी की। The center of Paul's gospel is a murdered Christ. और पौलुस रसूल की अंजील का जो मरकज है वो यीशु मसीह मसलूब है, Crucified, वो जो हमारे लिए मसलूब हुआ, but the one who, in his death, put death to death. और वो जो मर गया और जिसको मौत के अंदर डाला गया ताकि वो मौत पर फतह पाए। Jesus put death to death in conquering death. और यीशु को सलीब की यीशु को मौत के अंदर धकेला गया ताकि वो मौत पर फतह पाए। That demands everything of me, but it tells me one thing very clearly. और ये मुझसे सब चीजों का तकाजा करती है, लेकिन ये मुझे एक चीज बड़ी वाज़ेह बताना चाहती है। It tells me that what Jesus did is something very, very special. और ये मुझे बताना चाहती है कि जो कुछ यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए किया वो बड़ा अहम था। It tells me that God is not asking me to die on a cross to save myself. खुदा का ये पैगाम मुझे ये बताता है कि मुझे अपने गुनाहों की माफी के लिए अपने आप को सलीब पर मसलूब करने की जरूरत नहीं है, And that taking up my cross and following him in death is because I'm following one who conquered death. और ये मुझे ये बताता है कि मुझे अब अपनी सलीब को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी सलीब यीशु ने ले ली और अब मुझे उस सलीब के पीछे उसके कदमों पर चलने की जरूरत है जिसने मेरे लिए मौत फतह पाई। This gospel is so big, it demands everything of me and it shouts grace. This gospel is big. ये अंजील मुकद्दस बड़ी अंजील है जो मुझसे हर एक चीज का तकाजा करती है ताकि मैं फजल को हासिल कर सकूं। We honor Jesus when we say, Lord, you did it all. Your life is enough. Your death is enough. और हम खुदा को जलाल देते हैं जब हम कहते हैं कि खुदा तूने ये सब कुछ किया, तेरी जिंदगी हमारे लिए काफी है, तेरी मौत हमारे लिए काफी है। It pleases the heart of God when we give ourselves fully in thanks to what Christ has done. और ये खुदा के दिल को बड़ा इत्मीनान देती है, खुशी देती है जब हम कहते हैं कि तूने हमारे लिए सब कुछ मुकम्मल कर दिया। In other words, it pleases God for Him to give us His grace. और दूसरे लफ्जों में ये खुदा के फजल को हासिल करने के लिए खुदा को खुश करती है ताकि वो हमें अपना फजल बख्शे। And so I pray that we would consider Paul's message together today. और अब मेरी ये आखिर पर दुआ है कि जो कुछ आज हमने पौलुस रसूल के पैगाम से सीखा है, It is not the kind of message that men invent.
और ये एक ऐसा पैगाम है जो किसी इंसान की इजाद नहीं है। It is the message of Christ crucified. और ये एक ऐसा पैगाम है जो मसीह मसलूब का है। Foolishness to those who are perishing. और उन लोगों के लिए ये एक बेवकूफ़ी है जो अंजील को जो है वो जो सलीब को हमाकत का पैगाम समझते हैं। But to those who are being saved, the power of God and the wisdom of God. लेकिन जो जिनको निजात मिली है ये उनके लिए खुदा की और नजरिया है। And let me wrap up this message with one other thought. और आपके ख्याल के साथ मैं इस मैसेज को जो है वो इसका काम करूंगा। Here we are in the year 2025. और यहाँ 2025 साल मसीह की मौत से आगे दुनिया के अंदर Jesus lived and died and resurrected almost 2,000 years ago. और यीशु जो है वो मर गया और 2000 साल पहले वो मुर्दों में से जी उठा। And yet here we are in fellowship with him, just like the apostles were when they walked with him in Israel. और पौलुस की तरह हम भी उसके साथ हमें चलते हैं जिस तरह वो इस्राएल में चला। We have Christ because he is here with us still. और हमारे पास मसीह है क्योंकि वो अभी भी हमारे साथ हमारे दरमियान मौजूद है। Think with me, my friends, how few people actually heard his voice or saw him when he lived among us. How few people. और इस बारे में सोचे मेरे अजीजों किस तरीके से चंद लोग दर हकीकत जब मसीह उनके दरमियान रह रहा है, जब मसीह उनके दरमियान मौजूद है तो वो उसको सुनते, उसको समझते और उस पर गौर करते हैं। I don't know how many people have been born in the world since God made it. I don't know how many men and women have lived. और मैं नहीं जानता कि इस दुनिया के अंदर कितने ऐसे शख्स हैं जिनको खुदा ने इस दुनिया के अंदर पैदा किया है वो उसके मुताबिक जीते हैं। Right now on earth, we estimate there's about 8 billion people alive today. और एक आंकड़े के मुताबिक आज जमीन तकरीबन 8 बिलियन के नजदीक लोग जो है वो जिंदा हैं। So this I know for sure. Of all the people that have been born, the amount of people that saw Jesus raised from the dead were there when it happened is about this many. और मैं एक बड़े जो है वो पूरे वसूख के साथ एक बात कह सकता हूं और वो ये है कि तकरीबन जो एक चुटकी के बराबर है वो लोग हैं जो दुरुस्त तौर पर मसीह के अंदर पैदा हुए हैं। I mean, Jesus had 12 disciples. और यीशु के 12 शागिर्द थे। And hundreds followed him, but he had 12 disciples. और तकरीबन 100 प्लीज रिपीट अगेन। He had hundreds that followed him, but he only had 12 disciples. और तकरीबन जो है वो सैकड़ों उसके पीछे चलते थे लेकिन उसके शागिर्द सिर्फ 12 थे। So think of how few actually saw him. और इस बात पर अंदाजा करें कि किस तरीके से आप में से चंद लोग जो हैं उन्होंने आज भी उसे अपनी जिंदगियों में देखा है। I say all of this to encourage us today. और मैं ये सब कुछ इसलिए कह रहा हूं ताकि मैं आपकी हौसला अफजाई करूं। God's plan to save his people was not just for those who walked with him. It was to do the work among them that would save all of his people. और खुदा का मंसूबा ये नहीं है कि जो उसके साथ चलते हैं वो उनकी निजात करे, बल्कि खुदा इसलिए आया ताकि हर एक जान की नौबत जो है वो तौबा तक पहुंचे। Obviously, we don't have to physically be able to touch Jesus to walk with him. और हमें ये जरूरत नहीं है कि हम जो है वो
फिजिकली खुदा को छुएं या उसको हकीकी तौर पर छुएं। The gospel that Paul preached, the gospel that I preached with you today, और एक अंजील जो पौलुस ने सुनाई, जो मैं आज आपके दरमियान सुना रहा हूं, is the same message that saved people a week after Jesus went back into heaven. ये वही पैगाम है जो यीशु मसीह के सलीब पर उठाए जाने के एक हफ्ते के बाद जिसने कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर लोगों को बचाया। It's the same gospel that saved people 1,000 years ago. और ये वही अंजील है जिसने 1000 साल पहले लोगों की निजात का वसीला बनी, Finished on the cross and proclaimed to all generations, to the whole earth. और ये वो अंजील है जो सलीब पर मुकम्मल हुई और जो पूरी दुनिया के अंदर तमाम कौमों के लिए निजात का वसीला थी। And here is Paul's message to all of us. और यहाँ पौलुस रसूल का मैसेज हमारे लिए है, पैगाम हमारे लिए है। Here's what Paul received from God when he understood who Jesus is and what he did. और ये पौलुस का वो पैगाम है जो उसने यीशु के बारे में सीखा और जिसकी वो मनाती हमारे दरमियान कर रहा है। It's this. Do you recognize your sin? और इसका मतलब ये है कि हम अपने गुनाह को पहचाने। Are you burdened by it at all? और क्या आप इसके नीचे दबे हुए हैं? If you are aware of your sin, then come to Christ and be forgiven. और अगर आप अपने गुनाह से वाकिफ हैं तो आज मसीह के पास आएं और उसकी निजात को और उसके गुनाहों से अपने माफी मांगे। He will remove it all. और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि जब हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे तो वो हमें जरूर माफ कर देगा। He will take your sin and give you his righteousness today, every day. और वो आपको आज और हर दिन आपके गुनाहों को ले लेगा और अपनी रास्तबाजी आपको बख्श देगा। That is the message of grace. और ये फजल का वो पैगाम है। And it changes everything. और ये सब कुछ तब्दील करने की कुदरत रखता है। It is the sweetness and the goodness of God, who is holy, to offer us his life through Christ. और ये मसीह के जरिया से, उसके सलीब के जरिया से हमें ये बताया कि किस तरह हम उसकी निजात को हासिल कर सकते हैं। And if you and I believe it, friends, it's because we didn't receive it from anybody. It's because God himself gave it to us. और मसीह में मेरे अजीजों, आप और मैं जो मसीह के अंजील पर ईमान रखते हैं, ये इसलिए है क्योंकि ये कलाम इंसान की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से भेजा गया। And so that is the message I wanted to share with you today from Galatians chapter 1, a few verses, and I'd like to pray with you. और ये वो पैगाम है जो मैं आज आपके दरमियान सुनाना चाहता था गलीतियों उसके बाब उसकी कुछ आयात से, और अब मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। We've been on this video call for about an hour and a half now. I know I'm just warming up, but I don't want to go any longer. और मैं जानता हूं कि आपने बड़ा जो है वो इंतजार किया, और हम तकरीबन 1 घंटा जो है वो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। मैं तो अभी जो है वो और कलाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैं आपको तकलीफ में नहीं दे सकता। I have to ask Imran how long normally sermons last in Pakistan. और मैं भाई इमरान से ये जरूर पूछूंगा कि पाकिस्तान के अंदर लोग कितनी देर का कलाम सुनना पसंद करते हैं। I know for us, I know here in the US, if the preacher goes any longer than about 45 minutes to an hour, maybe, people tend to start looking at their watch. और मैं जानता हूं कि अमेरिका के अंदर लोग जो हैं वो तकरीबन 45 मिनट 1 घंटे का कलाम सुनते हैं, और अगर इससे ज्यादा जाए तो वो अपनी घड़ियों को देखना शुरू कर देते हैं। और मैं पाकिस्तान के बारे में भी जानना चाहूंगा। And that's because we're weak. और इसकी वजह ये है कि लोग 1 घंटे के बाद क्यों अपने घड़ियों को देखना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि हम कलाम के अंदर उतने मजबूत नहीं हैं।
But I'd like to pray with you, and then maybe we can have some questions or anything else. We'll see. Would you pray with me as we close? और मैं चाहूंगा कि मैं एक दुआ करूं और इसके बाद अगर आपका कोई सवाल जवाब हो तो आप जरूर उसको जो है वो शेयर कर सकते हैं। God, that Jesus prayed that you would sanctify us in your word, आसमानी बाप मसीह यीशु के वसीला से तो हमें हमारे गुनाहों से माफ कर। that your word is truth. आसमानी बाप तेरा कलाम हकीकी और सच्चा कलाम है। And so, Lord, what we want to do and what we have done is look at your word today. और आसमानी बाप जो कुछ हमने तेरे कलाम में से सीखा और जो हमने आज सुना है उस पर हमें अमल करने की तौफीक दे। There are so many things we could do that transform us into being more like Jesus. और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें यीशु के अंदर तब्दील कर सकती हैं। And chief among those things is praying about and considering your prophets, your word. और आसमानी बाप बतौर एक सरबराह हमें इन चीजों को समझने की तौफीक दे कि किस तरीके से हम तेरे कलाम को तेरी आवाज को सीख सकते हैं। And so, Lord, I thank you that we receive this gospel that is not according to man. और आसमानी बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमने एक ऐसी अंजील को सीखा जो इंसान की तरफ से नहीं है। I thank you that we do not believe in a gospel and trust in ourselves, a false gospel. और आसमानी बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम एक ऐसी अंजील पर यकीन रखते हैं जो इंसान की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से है। I pray that we would trust in the grace of God brought to us in Jesus. आसमानी बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं उस फजल की बदौलत जो मसीह में उस फजल की बदौलत जो अंजील मुकद्दस के वसीला से हमें हासिल होता है। Like we would trust a boat entirely to keep us afloat or a shade to cover us from the sun entirely. और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तेरे बेटे के वसीला से हम एक ऐसी कश्ती के अंदर ईमान रखते हैं जो डूब चुकी थी, जो डूबने के दहाने पर थी, लेकिन तेरे बेटे ने उस कश्ती को बचा लिया। I pray that we would be reminded today of a gospel of grace alone that truly saves. और आसमानी बाप आज हम उस ऐसी अंजील पर यकीन रखते हैं जो सच्चाई की अंजील है। And that you would be blessed by us affirming that we trust in Jesus, our Savior, to save. और आसमानी बाप हम एक ऐसी अंजील पर यकीन रखते हैं जो हमारे निजात दहिंदा यीशु की बदौलत हमें मिली। Lord, we need your grace to believe in you. आसमानी बाप हमें तेरे हजूर ईमान की जरूरत है, उस अंजील की जरूरत है जो हमें बचाए। We need your love to trust in you. हमें तेरी मोहब्बत की जरूरत है ताकि हम तेरे अंदर कामिल ईमान रखें। We need your gospel to save us. हमें तेरी ऐसी अंजील की जरूरत है जो हमें बचाए। We need grace, and we thank you for the resurrection of Jesus that brings it. और हमें एक ऐसी अंजील की जरूरत है जो हमें हमारे गुनाहों में से बचाए। Thank you for appearing to Paul and sending him to the world. और आसमानी बाप पौलुस रसूल की उस अंजील के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। Thank you for saving Paul so that we can know you can save us. और हम पौलुस रसूल के बचाए जाने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि उसी तरीके से तूने हमें भी बचाया। And may we, like Paul, boast in only one thing, and that's that you died for us. और जिस तरीके से पौलुस और जो चीज हमारे लिए भी अहम है वो ये है कि तूने हमें हमारे गुनाहों से बचाया। That's good news, Lord, and we receive it. और आसमानी बाप ये खुशखबरी की बात है और हम इसे कबूल करते हैं। We thank you for this day and for this gospel. In Jesus' name, amen. और हम इस खुशखबरी के लिए और इस अंजील के लिए आज के इस दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मसीह यीशु के नाम से।
Amen. Amen.